ریاضی چھٹی جماعت سبق نمبر 3 صحیح عدد۔ طبعی اعداد 1 2 3 4 یہ سبھی طبعی اعداد ہے۔ چیزوں کو گننے کے لیے ان اعداد کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں گنتی کے اعداد بھی کہا جاتا ہے اور انہیں طبعی اعداد بھی کہتے ہیں۔ یہ اعداد بے شمار ہوتے ہیں۔ سب سے چھوٹا عدد 1 ہوتا ہے، سب سے بڑا عدد ہم بتا نہیں سکتے۔ کیا ہم رات کے وقت آسمان میں چمکنے والے تاروں کو گن سکتے ہیں یا سمندر کے ساحل پر ریت کے ذرات کو گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے نا، کیونکہ وہ بے شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح طبعی اعداد بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ اکثر ہم پوچھتے ہیں گھڑی میں کتنے بجے ہیں، یا کتاب یا بیاض میں کتنے صفحات ہیں، یا پھر آم کے ڈبے میں کتنے آم ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں معلوم کرنے کے لیے چیزوں کو گننا پڑتا ہے۔ چیزوں کی گنتی ہم اعداد کی صورت میں لکھتے ہیں یا کرتے ہیں۔ مکمل اعداد۔ ہم پہلے ہی ان طبعی اعداد کی جمع تفریق کرنا بھی سیکھ چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں سب سے چھوٹا گنتی کا عدد کیا ہے؟ 1 ہے۔ اگر 1 میں سے 1 تفریق کرے تو باقی کیا رہتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اور جب کچھ نہیں ہوتا ہے تب ہم کیا لکھتے ہیں؟ 0۔ 0 اور تمام طبعی اعداد کو ملا کر حاصل ہونے والے اعداد کے مجموعے کو مکمل اعداد کا مجموعہ کہتے ہیں۔ مکمل اعداد یا گنتی کے اعداد کی شروعات 0 سے ہوتی ہے، یعنی یہاں پر 0 سب سے چھوٹا عدد ہے۔ مکمل اعداد بھی بے شمار ہے، لامحدود ہے۔ اس کا سب سے بڑا عدد ہم بتا نہیں سکتے۔ ابھی تک ہم نے طبعی اعداد اور مکمل اعداد کی معلومات حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایسے اعداد ہیں جنہیں ہم اپنے کاروبار میں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خریداری کرتے وقت ہمیں سہولت ملتی ہے یا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اس وقت ڈسکاؤنٹ کی قیمت خریدے قیمت سے تفریق کرتے ہیں یا مائنس کرتے ہیں۔ تفریق کی ہوئی قیمت یا مائنس والی قیمت یا مائنس والا جو عدد ہوتا ہے اسے ہی منفی عدد یا منفی اعداد کہتے ہیں۔ آئیے اس کے لیے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں۔ خالص پانی سے بنا ہوا برف 0 درجہ سیلسیس ہوتا ہے۔ جب برف کے اوپر نمک ڈالتے ہیں تو اس آمیزے کا درجہ حرارت 0 سے نیچے گر جاتا ہے۔ ایسے وقت اسے ظاہر کرنے کے لیے ہمیں 0 سے چھوٹا عدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس تصویر کو دیکھیے۔ اوپر کی مثال کے ذریعے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کلفی والا برف اور نمک کے آمیزے میں کلفی کے سانچے کیوں رکھتا ہے۔ دوسری مثال سے سمجھیے، مہاراشٹر میں سردیوں میں درجہ حرارت 10 درجہ سیلسیس یا 8 درجہ سیلسیس تک نیچے جاتا ہے، لیکن وہ کبھی 0 یا 0 درجہ سیلسیس تک نہیں جاتا۔ البتہ کشمیر میں وہ کبھی کبھی 0 درجہ سیلسیس سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اسے ظاہر کرنے کے لیے 0 سے بھی چھوٹے عدد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جنوری میں کشمیر میں برف باری ہوتی ہے، تب سری نگر کا درجہ حرارت -8 درجہ سیلسیس ہوتا ہے۔ اسے -8 درجہ سیلسیس پڑھتے ہیں۔ معمول کے اعداد سے قبل منفی یا مائنس کی علامت لگا دینے پر وہ اعداد 0 یا 0 سے چھوٹے ہو جاتے ہیں، انہیں منفی اعداد کہتے ہیں۔ تپش پیما پر 0 کے اوپر 1 2 3 کی طرح چڑھتی ترتیب میں اعداد ہوتے ہیں، انہیں مثبت اعداد کہتے ہیں۔ 0 کے نیچے یا 0 کے نیچے اعداد بالترتیب -1 -2 -3 ہوتے ہیں۔ 0 کے بائیں جانب 1 2 3 اکائی فاصلوں پر -1 -2 -3 اعداد ہوتے ہیں، انہیں منفی اعداد کہتے ہیں۔ عددی خط پر دائیں جانب کے اعداد 1 2 3 1 2 3 کو مثبت اعداد کہتے ہیں، انہیں 1 2 3 کی طرح +1 +2 +3 بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور بائیں جانب کے اعداد کو منفی اعداد کہتے ہیں۔ منفی اعداد کو -1 -2 -3 لکھتے ہیں اور اسے -1 -2 یا -3 پڑھتے ہیں۔ اوپر کی دونوں مثالوں سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے 0 سے بھی چھوٹے عدد ہوتے ہیں۔ لفٹ میں بٹنوں پر زمینی سطح کے لیے 0، جبکہ زمینی سطح سے نیچے کی منزلوں کے لیے -1 -2 یا -1 -2 جیسے نمبر شمار دیے جاتے ہیں۔ صحیح اعداد۔ مثبت اعداد 0 اور منفی اعداد کے مجموعے کو صحیح اعداد کا مجموعہ کہتے ہیں۔
منفی اعداد کو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ بڑی بڑی عمارتوں یا مال کے زمینی سطح سے نیچے بھی منزلیں ہوتی ہے. ان منزلوں میں جانے کے لیے ہم لفٹ کا استعمال کرتے ہیں. نیچے کی منزلوں کو جانے کے لیے -1 -2 جیسے نمبر شمار کے بٹن ہوتے ہیں. صحیح اعداد کو عددی خط پر دکھانا. صفر کے دائیں جانب اور بائیں جانب مساوی فاصلوں پر نقاط لگائے جاتے ہیں. بائیں جانب کے اعداد کو منفی اعداد کہتے ہیں اور دائیں جانب کے نقاط سے دکھائے ہوئے اعداد کو مثبت اعداد کہتے ہیں. عددی خط پر جو نقطہ صفر کا عدد ظاہر کرتا ہے اس نقطے کو ابتدائی نقطہ یا مبدا کہتے ہیں. افقی عددی خط کی طرح ہی عمودی عددی خط بھی ہوتا ہے، یعنی آڑا عددی خط کے طرح ہی کھڑا عددی خط بھی ہوتا ہے. تپش پیما یا پھر پانی کی گہرائی کی سطح کو معلوم کرنے کے لیے کھڑا عددی خط ہوتا ہے. تپش پیما پر مثبت اعداد صفر کے اوپر جبکہ منفی اعداد صفر کے نیچے ہوتے ہیں. مثبت اور منفی اعداد صفر کے مخالف سمتوں میں ہوتے ہیں. عددی خط، مثبت اعداد، منفی اعداد. کاروبار کرتے وقت ہمیں کچھ احتیاط برتنی چاہیے، جیسے کہ منفی اعداد سے قبل تفریق کی علامت لگانا ہی پڑتی ہے، لیکن عام طور پر مثبت اعداد سے قبل جمع کی علامت نہیں لگاتے. البتہ صفر سے قبل کوئی علامت نہیں لگائی جاتی، نہ منفی نہ ہی مثبت. ذیل کے اعداد کی منفی اعداد اور مثبت اعداد میں جماعت بندی کیجیے. جماعت بندی کرنے کے لیے یہاں پر ہم ایک جدول تیار کریں گے. جدول کے پہلے خانے میں اعداد لکھیں گے اور دوسرے خانے میں مثبت یا منفی کی جماعت بندی کریں گے. پہلا ہے تفریق 5 منفی جمع 26 مثبت، تفریق 49 منفی، تفریق 37 منفی 19 مثبت، تفریق 25 منفی 27 مثبت. ابھی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے تفریق کی علامت والے اعداد منفی ہوتے ہیں اور جن کے آگے کوئی علامت نہیں ہوتی ہے وہ مثبت اعداد ہوتے ہیں. اب ہم کچھ مثالیں حل کریں گے ماں وجہ کے ساتھ. پہلی مثال ہے ہماری بھارت کی راجدھانی دہلی کا درجہ حرارت 0 درجہ سیلسیس کے اوپر 22 درجہ سیلسیس ہے، تو بتائیے منفی ہوگا یا مثبت؟ سوچئے کیا ہوگا؟ مثبت، کیونکہ درجہ حرارت 0 سے زیادہ ہے اس لیے مثبت 22. دوسری مثال میں شملہ کا درجہ حرارت 0 درجہ سیلسیس کے نیچے 7 درجہ سیلسیس ہے، یعنی یہاں پر 7 درجہ سیلسیس یہ 0 سے چھوٹا عدد ہے، اس لیے یہ ہوگا منفی 7 درجہ سیلسیس. اب ان مثالوں میں اعداد کو علامتوں کا استعمال کر کے لکھیے. پہلی مثال ہے زمین دوست راستہ زمین کے نیچے 5 میٹر گہرائی میں ہے، تو بتائیے یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ 5 منفی عدد ہے کیونکہ یہ زمین کے نیچے ہے اس لیے منفی 5. زمین سے 120 میٹر فاصلے پر اڑنے والا ہوائی جہاز. 120 کیا ہوگا، مثبت یا منفی؟ 120 مثبت ہوگا کیونکہ یہ کیا ہے، زمین سے اوپر ہے، اور ہم جانتے ہیں عددی خط کے اوپر کے اعداد مثبت ہوتے ہیں. اس مثال میں ایک آبدوز سطح سمندر سے 512 میٹر فاصلہ گہرائی میں ہے. 512 مثبت ہوگا یا منفی؟ یہاں پر گہرائی میں ہے یعنی نیچے ہے، تو ہم جانتے ہیں عددی خط کے نیچے کے اعداد منفی ہوتے ہیں اور اوپر کے اعداد مثبت ہوتے ہیں. گہرائی میں ہے مطلب کیا ہے، نیچے ہے، اور نیچے کے اعداد کیا ہوتے ہیں، منفی. 512 کیا ہو گئے، منفی 512. ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی سطح سمندر سے 8,848 میٹر ہے. اس سے پہلے کی مثال میں ہم سمجھ چکے ہیں زمین کے اوپر کے اعداد کون سے ہوتے ہیں، مثبت، اور زمین کے نیچے کے منفی. ہمالیہ کی سب سے اونچی چوٹی یعنی یہ کیا ہے، زمین کے اوپر ہے، اونچی ہے، اس لیے 8,848 کیا ہوں گے، مثبت. اس مثال میں زمین سے 120 میٹر فاصلے پر اڑنے والا پتنگ. زمین سے پتنگ کیا ہے، زمین سے اوپر ہے، یعنی 120 کیا ہو گیا، مثبت. صحیح اعداد کی جمع. اب ہم عددی خط کی مدد سے صحیح اعداد کی جمع کو معلوم کریں گے.
कोई भी आदात में मस्बत आदात को जमा करना। सबसे पहले अददी खत के लिए हम एक खत खींचेंगे। उस खत पर सिफर के दाएं जानिब और बाएं जानिब मसावी फासलों पर नुकात लगाएंगे। दाएं जानिब के नुकात को मस्बत आदात बताएंगे और बाएं जानिब के आदात को मनफी आदात दिखाएंगे। किसी भी अदद में कोई मस्बत अदद मिलाना यानी अददी खत पर इस अदद से दाएं जानिब उतनी इकाई आगे जाना। चलिए अब हम एक मिसाल हल करेंगे। 3 जमा 2। हम जानते हैं जब कोई अदद के आगे अलामत नहीं होती है तो वो अदद मस्बत होते हैं। मस्बत 3 जमा मस्बत 2। सबसे पहले हम अददी खत पर मस्बत 3 इस अदद को ढूंढेंगे। मस्बत 3 के बाद कितने जाना है आगे हमको? मस्बत 2। मस्बत 3 के बाद 1 2 यानी यहाँ पर हमको जवाब क्या हासिल हुआ? मस्बत 5। 3 जमा 2 बराबर 5। दूसरी मिसाल भी उसी तरह हल करेंगे। मनफी 3 जमा 5 बराबर कितने? सबसे पहले हम अददी खत पर मनफी 3 पर जाएंगे। मनफी 3 के बाद कितने हैं? जमा 5। 1 2 3 4 5। मनफी 3 जमा 5 बराबर मस्बत 2। हमें जवाब हासिल हुआ मनफी 3 जमा 5 बराबर 2। अगली मिसाल मनफी 6 जमा 9 बराबर कितने? सबसे पहले हम अददी खत पर मनफी 6 पर जाएंगे। मनफी 6 से आगे कितने हैं? जमा 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मस्बत 3। हमें जवाब क्या हासिल हुआ? मस्बत 3। मनफी 6 जमा 9 बराबर 3। 2 जमा 4। अब तक के हमने सीखा है जिन आदात के आगे अलामत नहीं होती है वो मस्बत होते हैं। मस्बत 2 जमा मस्बत 4 बराबर कितने? सबसे पहले हम मस्बत 2 पर जाएंगे। मस्बत 2 के बाद कितने हैं? मस्बत 4। 1 2 3 4। मस्बत 6। 2 जमा 4 बराबर 6। हमें जवाब हासिल हुआ 2 जमा 4 बराबर 6। अब हम इबारती सवालात अददी खत की मदद से हल करेंगे। पहली मिसाल है, मेरे पास 5 रुपए है। अम्मी ने मुझे कलम खरीदने के लिए 2 रुपए दिए, तो बताइए मेरे पास कुल कितने रुपये हुए। अब इस मिसाल को हम अददी खत पर हल करेंगे। सबसे पहले क्या है? मेरे पास क्या है? 5 रुपए। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? मस्बत 5 पर। उसके बाद अम्मी ने मुझे कलम खरीदने के लिए कितने रुपए दिए? 2 रुपए दिए। हम आगे कितने जाएंगे? 2। 1 2। जवाब हासिल हुआ मस्बत 7। मतलब मेरे पास कुल 7 रुपए है। दूसरी मिसाल हल करेंगे। मुझे एक कहानी की किताब खरीदनी है लेकिन मेरे पास रुपए नहीं है, इसलिए मैंने मारिया से 5 रुपए उधार ली और अदीबा ने मुझे 6 रुपये दिए। अब बताइए मेरे पास दोनों के मिलाकर कितने रुपये हुए। सबसे पहले मैंने मारिया से कितने रुपए उधार ली? 5 रुपए। तो हम जाएंगे मस्बत 5 पर। उसके बाद अदीबा ने कितने रुपये दिए मुझे? 6 रुपए। तो आगे जाएंगे हम 1 2 3 4 5 6। कहाँ पर पहुँचे हम? मस्बत 11। तो जवाब हासिल हुआ मस्बत 11। मेरे पास दोनों के मिलाकर कुल 11 रुपए है। सबसे पहले अददी खत के लिए हम एक खत खींचेंगे। उस खत पर सिफर के दाएं जानिब और बाएं जानिब मसावी फासलों पर नुकात लगाएंगे। दाएं जानिब के नुकात को मस्बत आदात बताएंगे और बाएं जानिब के आदात को मनफी आदात दिखाएंगे। सही आदात की जमा। इससे पहले हमने मस्बत आदात की जमा सीखे थे। आज हम मनफी आदात की जमा किस तरह की जाती है वो देखेंगे। किसी भी अदद में मनफी अदद मिलाना यानी अददी खत पर इस अदद से बाएं जानिब उतनी इकाई आगे जाना या उतनी ही इकाई पीछे जाना यानी तफरीक करना। चलिए पहली मिसाल हल करते हैं। 3 जमा मनफी 4 बराबर कितने? सबसे पहले हम अददी खत पर मस्बत 3 पर जाएंगे। उसके बाद बाएं तरफ मनफी 4 1 2 3 4। हमें जवाब क्या हासिल हुआ? मनफी 1। दूसरी मिसाल है 5 जमा नफी 3 बराबर कितने? सबसे पहले हम अददी खत पर मस्बत 5 पे जाएंगे और बाएं तरफ कितने जाना है? मनफी 3। 1 2 3। कितना जवाब आ रहा है? मस्बत 2। हमें जवाब हासिल हुआ 2। अगली मिसाल है मनफी 2 जमा मनफी 4। यहाँ पर दोनों आदात की अलामत जो है वो मनफी है। सबसे पहले हम अददी खत पर मनफी 2 पर जाएंगे। मनफी 2 के बाद है मनफी 4। 1 2 3 4। क्या जवाब हासिल हुआ? मनफी 6।
अगली मिसाल है -5 जमा -3। अददी खत पर हम सबसे पहले -5 को ढूंढकर -5 पे जाएंगे। उसके बाद आगे कितना है -3। 1 2 3, क्या जवाब हासिल हुआ? -8। यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिए, यहाँ पर दोनों आदाद मनफी है तो उनका जवाब भी मनफी आया है। अगली मिसाल है -3 जमा -3। अददी खत पर हम सबसे पहले -3 पर जाएंगे और आगे भी हमको -3 कदम ही चलना है। 1 2 3, -3 जमा -3 बराबर कितने हुए? -6। तो आदाद मनफी है और उनका जवाब भी मनफी में आया है। अब हम इबारती सवालात अददी खत की मदद से हल करेंगे। पहली मिसाल है, अहमद की अम्मी ने अहमद को सौदा लाने के लिए -8 रुपए दिए और बाजी ने -2 रुपए दिए। बताइए अहमद के पास कितने रुपए हो गए? सबसे पहले हम अददी खत पर हमारे पास कितने आदाद है? 2 आदाद है, -8 और -2। हम अददी खत पर -2 पर जाएंगे। -2 पर जाने के बाद आगे कितनी है? -8। 1 2 3 4 5 6 7 8। जवाब क्या हासिल हुआ? -10। यानी अहमद के पास -10 रुपए हो गए। अकरम के पास 5 रुपए है, इसमें से -3 की पेंसिल खरीदने के लिए खर्च किए तो अकरम के पास कितने रुपए रह गए? हमारे पास यहाँ पर 2 अदद है, एक मस्बत 5 है और एक -3 है। हम अददी खत पर सबसे पहले मस्बत 5 पर जाएंगे। उसके आगे कितने हैं? -3। 1 2 3, क्या जवाब हासिल हुआ? मस्बत 2। तो अकरम के पास कितने रुपए रह गए? 2 रुपए रह गए। अभी तक के हमने अददी खत पर मस्बत आदाद और मनफी आदाद की जमा करना सीखे। अब हम उन आदाद के अलामत के उसूल सीखेंगे। मिसालों के जरिए सही आदाद के अलामत के उसूल। यकसा अलामत वाले सही आदाद की जमा देखेंगे। 3 जमा 2 बराबर 5, 5 जमा 4 बराबर 9, -3 जमा -4 बराबर -7, -6 जमा -2 बराबर -8। मुख्तलिफ अलामत वाले सही आदाद की जमा। -3 जमा 5 बराबर मस्बत 2, -3 जमा 6 बराबर मस्बत 3, मस्बत 3 जमा -5 बराबर -2, -4 जमा 8 बराबर मस्बत 12। यकसा अलामत वाले सही आदाद की जमा करते वक्त अलामत का ख्याल किए बगैर आदाद की जमा की जाए और आने वाली जमा को यकसा अलामत वाली अलामत लगाई जाती है। यहाँ पर आप मिसालों में देख सकते हैं। उसी तरह से मुख्तलिफ अलामतों वाले सही आदाद की जमा करते वक्त अलामतों का ख्याल किए बगैर बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक किया जाए और आने वाली तफरीक को बड़े अदद की अलामत लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप मिसालों में देख सकते हैं। मस्बत 3 जमा मस्बत 5, इसमें मस्बत 3 जमा 5, यहाँ पर बड़े अदद की जो अलामत है वो मस्बत है, इसलिए जो जवाब हासिल हुआ उसकी अलामत भी क्या होंगी? मस्बत होंगी। तीसरी मिसाल में हम देख सकते हैं मस्बत 3 जमा -5, यहाँ पर मस्बत 3 छोटा अदद है और -5 बड़ा अदद है। जो जवाब हासिल हुआ -2, जवाब के लिए बड़े अदद की अलामत हमने लगाई है। मतजाद आदाद। अददी खत पर खरगोश जब सिफर से दाएं जानिब 3 इकाइयों की छलांग लगाता है तब वो मस्बत 3 अदद पर जाता है, और जब वो सिफर से बाएं जानिब 3 इकाइयों की छलांग लगाता है तब वो नफी 3 अदद पर जाता है। यानी सिफर से दोनों ही फासले मसावी है, सिर्फ छलांग लगाने की सीमतें एक दूसरे के मुखालिफ है, यानी मस्बत 3 और -3 एक दूसरे के क्या हो गए? मतजाद आदाद हो गए। दूसरी तस्वीर में देखिए, खरगोश जब सिफर से दाएं जानिब 5 इकाइयों की छलांग लगाता है तब वो मस्बत 5 अदद पर जाता है, और जब वो सिफर से बाएं जानिब 5 इकाइयों की छलांग लगाता है तब वो -5 अदद पर जाता है। सिफर से दोनों ही फासले मसावी है, लेकिन इनके छलांग लगाने की सीमतें एक दूसरे के मुखालिफ है, अपोजिट है, यानी मस्बत 5 और -5 ये एक दूसरे के क्या हो गए? मतजाद आदाद हो गए। अददी खत पर मस्बत 3 और -3 और मस्बत 5 और -5 ये एक दूसरे के मुखालिफ में हैं, ऐसे आदाद की जोड़ी को मतजाद आदाद कहते हैं। इन मिसालों से हम समझ सकते हैं मतजाद आदाद सिफर से यकसा फासले पर होते हैं, लेकिन मुखालिफ सिमतों में होते हैं। अगर हमने अददी खत के दाएं जानिब 5 इकाई की छलांग लगाए
और वापस से पलटकर 5 इकाई की छलांग जानिब लगाए तो हम कहाँ पहुँचेंगे? सिफर पर, यानी मस्बत 5 जमा मनफी 5 बराबर सिफर। उसी तरह से बाएं तरफ मनफी 3 इकाई पर छलांग लगाए और वहीं से पलटकर दाएं तरफ 3 इकाई छलांग लगाए तो हम सिफर पर पहुँचेंगे, यानी मनफी 3 जमा मस्बत 3 बराबर सिफर। मनफी 7 जमा मस्बत 7 बराबर सिफर। मस्बत 25 जमा मनफी 25 बराबर सिफर। इन मिसालों के जरिए हम समझ सकते हैं दो मतजात आदाद की जमा सिफर होती है। ज़ेल के जदोल में दिए गए आदाद के मतजात अदद लिखने हैं। पहले खाने में आदाद दिए हैं, दूसरे खाने में उसके मतजात आदाद लिखने हैं। सबसे पहला है 47, उसका मतजात अदद है मनफी 47, मस्बत 52 मनफी 52, मनफी 33 मस्बत 33, मनफी 84 मस्बत 84, मनफी 21 मस्बत 21, मस्बत 16 मनफी 16, मनफी 26 मस्बत 26, मस्बत 80 मनफी 80। सही आदाद का छोटा बड़ापन। अदद खत पर 4 से छोटा 3 होता है, 3 से छोटा अदद 2 होता है, 2 से छोटा अदद 1 और 1 से छोटा सिफर। उसी तरह से बाएं तरफ सिफर से छोटा नफी 1 और नफी 1 से छोटा नफी 2, नफी 2 से छोटा नफी 3 और नफी 3 से छोटा अदद नफी 4 होता है। इस तरह से दाएं तरफ के आदाद बड़े होते जाते हैं और बाएं तरफ के आदाद छोटे होते जाते हैं। सही आदाद का छोटा बड़ापन के उसूल। सिफर ये अदद कोई भी मनफी अदद से बड़ा होता है। सिफर ये अदद कोई भी मस्बत अदद से छोटा होता है। कोई भी मस्बत अदद सिफर से बड़ा होता है, कोई भी मनफी अदद सिफर से छोटा होता है। अददी खत पर दाएं तरफ के आदाद छोटे होते हैं और बाएं तरफ के आदाद बड़े होते जाते हैं। अब हम मस्बत आदाद सिफर और मनफी आदाद पर गौर करके इनमें छोटा बड़ापन तय कर सकते हैं। ज़ेल की जदोल में मुनासिब अलामत लगाकर छोटा बड़ापन तय कीजिए। पहली मिसालें 7 और 4। अदद 7 अदद 4 से बड़ा है। मनफी 4 और 5, मनफी 4 5 से छोटा है। 9 मस्बत 9, 9 और मस्बत 9 ये दोनों क्या है? बराबर है। इनमें कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। मनफी 2 मनफी 8, मनफी 2 मनफी 8 से बड़ा है। 8 मनफी 10, 8 मनफी 10 से बड़ा है। 3 और सिफर। अदद 3 सिफर अदद से बड़ा होता है। सिफर और 3, सिफर अदद 3 से छोटा अदद है। मनफी 1 मनफी 2, मनफी 1 मनफी 2 से क्या है? बड़ा है। मनफी 12 और मस्बत 2, मनफी 12 मस्बत 2 से छोटा होता है। मनफी 15 मनफी 15, मनफी 15 और मनफी 15 दोनों क्या है? बराबर है, न छोटे हैं न बड़े हैं एक दूसरे से। 100 मनफी 1000, मस्बत 100 मनफी 1000 से बड़ा होता है। सही अदद की तफरीक करना। इससे पहले हमने सही आदाद की जमा करना सीखे थे। आदाद के मतजात अदद भी सीखे हमने और अददों का छोटा बड़ापन भी हम सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में सही अदद की तफरीक किस तरह की जाती है वो अब हम देखेंगे। सही अदद की तफरीक करते वक्त दिए हुए तफरीक को मतजात अदद में तब्दील करना। किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक करना यानी दूसरे अदद का मतजात अदद पहले अदद में मिलाना। आइए अब हम इस बात को समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, मनफी 9 तफरीक मनफी 4 बराबर कितने। पहला अदद क्या है हमारा? मनफी 9। दूसरा अदद क्या है हमारा? मनफी 4।
-4 का हमें क्या लेना है? मज्जात अदद। क्या होगा? مثبت 4। पहले अदद में से दूसरे अदद का मज्जात अदद को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। -9 जमा مثبت 4। مثبت 4 क्या है? ये -4 का मज्जात अदद। -9 जमा 4 बराबर -5। यानी यहाँ पर हमने पहले अदद से दूसरे अदद का मज्जात अदद मिलाए तो हमें क्या हासिल हुआ? उसका जवाब हासिल हुआ। एक और मिसाल देखते हैं। مثبت 9 तफरीक -5 बराबर कितने? दूसरा अदद क्या है हमारा? -5। -5 का मज्जात अदद क्या है? مثبت 5। पहला अदद क्या है? مثبت 9। مثبت 9 में दूसरे अदद का मज्जात अदद हम मिलाएंगे। مثبت 9 जमा مثبت 5। 9 जमा 5 बराबर कितने हुए? 14। यानी यहाँ पर किसी अदद में से दूसरा अदद तफरीक करना यानी दूसरे अदद का मज्जात अदद पहले अदद में मिलाना।